Hello, sir. Good morning. Namaskar, Parab sir. Hello, am I audible? सर तुम्ही शेअर करू शकता? चेक करूया. Hello. Yeah, am I audible? Yes, sir. Yes. I would like to share my screen Yes, you can share. PowerPoint. I'll just see. Is it visible now? Yes. It's visible. Yes, yes. Okay. When we are starting, I'll share it again. आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है. डायरेक्ट बोलून. I think now the sound will be clear. Yes, yes. Okay. It's loud enough. So, अजून जॉईन झालेच नाही मुलं अजून. 8:58 झालं. Sir, shall we start? yeah, please. Good morning, one and all. Respected Director, Hindi Vidya Prachar Samiti, Dr. Usha Mukundan, Principal Dr. Himanshu Davda, Vice Principal Dr. Sneha Devskar, and all teachers and my dear students. Half of the world's youth population are subjected to anxiety and depression. Many are uncertain of their future career prospects. The easy way or the escaping route in this situation they find is any kind of addiction. So this leads the youth to never-ending situations or traumas, etc. So every year, thousands of young children, knowingly or unknowingly, get involved in any kind of addiction. So to address this issue, every year, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is observed on 26 June. So to highlight this issue, we have with us Dr. Sachin Parab, who is Joint Secretary and National Coordinator of My India Addiction Free India campaign. So welcome, sir. May I now request Dr. Sneha Devskar, who is Vice Principal, to address the gathering. Sneha, madam. Namaskar. A very good morning to everyone. At the outset, on behalf of Hindi Vidya Prachar Samiti's Ram Niranjan Jhunjhunwala College, I welcome today's eminent speaker, Dr. Sachin Parab, who is Joint Secretary and National Coordinator of My India Addiction Free India.
26th June is celebrated as an International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Today's guest speaker is a person having passion to make addiction-free India. So we are eager to hear you, sir. Welcome once again. And I thank you for accepting the invitation by RJC DLLE team. Over to Vaishali Raikwar, madam. Thank you. Thank you. Thank you, madam. It gives me immense pleasure to introduce Dr. Parab. He has done MBBS with specialization in clinical research. He is a professional counselor and hypnotherapist. He is visiting faculty of training and development at BSES, MG Hospital, Andheri. He is also the project director of Global Initiative of Tobacco Awareness. He is a corporate trainer and trained employees of many companies like Telco, National Fertilizers, Titan, HPCLs, to name a few. He is the joint secretary of medical wing of Raj Yoga Education and Research Foundation. He is also a facilitator for Vyasa International Program for Health Practitioners. He is practicing and teaching Raj Yoga meditation since 25 years. He is the recipient of prestigious Mahatma Gandhi De-Addiction Award for giving services in the field of de-addiction. He has also received Adarsh Doctor Award and Rotary Service Award. He is author of motivational book Samasyaon Se Samadhan Tak. His areas and subjects of specialization are art of positive thinking, the art of Raj Yoga meditation, science of meditation, how to quit addiction, inner healing, emotional intelligence, to name a few. So please join with me to welcome our eminent speaker, Dr. Sachin Parab. Over to you, sir. Thank you very much. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, thank you very much for giving me opportunity to share my thoughts on the subject. Respected dignitaries, teachers, and students. I can talk on for hours. I give training for 16 hours to doctors and healthcare people on addiction. But I have 1 hour in which I have to give orientation. I can give orientation. My experience in this field is of last 26 years. And I have traveled from Jammu Kashmir to Kanyakumari, every state of India. And I can talk about every state in great detail because 26 years is a great experience. But today's topic I will restrict to hard drugs. I have some slides and I will talk about those slides. And then if you have questions, you can ask me in the end. So I'm starting my presentation. Are the slides visible? Not now, sir. Okay, I'll just share the screen. Yeah, it is visible. Okay, so as madam has mentioned, this day is 26th June, and 26th June, why this date was used? Because few people, I think even educated people, are not aware that there were 2 wars fought between British and China on opium, that is Afim, we called it in India. And one king of China who opposed it, and he opposed it on 25th of June in 1800s, 36 in those days. So with the memory of this opposition, this day is declared as 26th June, a day against, we call it anti-narcotic day. This is the photo. If you can see the person here in 7 years, how it gets transformed. I have so many photographs, but I am not going into detail. Every year there is a theme for this international day, and this year theme is share facts on drugs and save lives. Many people, as I said, are not aware, especially youth. My session will be targeted for youth. There is a lobby in India which is working to push
unfortunately cannabis or ganja as a legal drug. And this is how this industry is functioning. And the data are also saying that past years, millions of users, you can see the data, cannabis has become 192 million. Cannabis, जिसको हम गांजा कहते हैं, in some countries, marijuana, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, followed by opioids, that is afim, and followed by certain prescription stimulant, certain drugs which are synthetic, or party drugs we call it, or in other words a very harsh word which is used, that is rape drug. So these are all drugs used. What I am seeing is in India, the gateway drug, if you understand the word gateway, gateway माना जिससे addiction की शुरुआत होती है, वो drug था tobacco और गुटखा और cigarette. But unfortunately, because of this lobby which is very strong in India, अभी यूथ के माइंड में ऐसे बिठा दिया इन्होंने कि वीड या गांजा जो है वो गेटवे ड्रग बनता जा रहा है. इट्स नॉर्मल. एंड द लॉजिक विच दे आर गिविंग, विच इज अ फनी लॉजिक, दे से कि इट इज approved in certain developed countries like Canada, Colorado, and so many states of world, USA. These are approved drugs. तो इंडिया में क्यों नहीं अप्रूव कर रहे हैं? So हम इसके ऊपर आएंगे, but the facts I am saying is this is unfortunate that the use of cannabis in India is increasing. Now, before starting going into the drugs, let's understand what is a drug. So drug can be any substance. When you take it, it modifies how you perceive the world, how you see, smell, hear, your mood, your thought process, your behavior and motor functions are affected. Then this substance can be a drug. These substances are available legally or illegally and can lead to dependence and addiction. These are the 5 C's of addiction. Loss of control. The person loses control over himself or herself. He has a craving, जिसको हम तल्लफ कहते हैं, बार बार लेने का दिल करता है. There is compulsion of using the drug, continued use despite the harm. तकलीफ हो रही है फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, and it becomes chronic, means old problem. So these are the 5 C's of addiction. Addictions are of 2 types. Majority people talk about tobacco, alcohol, and hard drugs, but we are seeing in last decade, these new addictions have come up, and they have come in textbook of medicine also. Doctors are also aware. We call them behavioral addiction. Especially in this corona epidemic, these addictions are increasing. Gambling is also addiction. Shopping is an addiction. Internet shopping can be on internet also. So internet addiction, mobile addiction, food and relationship, these are also behavioral addiction. My 50% lectures are on digital addiction nowadays. These are the stages through which an addict goes. सबसे बड़ी गलतफहमी यूथ के बीच में होते हैं कि मैं कभी कभार इस्तेमाल करता हूँ या पार्टी में ही इस्तेमाल करता हूँ. Please understand, every drug addict passes through these stages. First he uses, then he misuses, then abuses, then dependence, and then addiction. So these are always the stages. So कभी मत ये कहना कि कभी कभार, this belief system we have to change. जो लोग समझते हैं कभी कभार इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होता है, हम कंट्रोल कर लेंगे. For your information, once use, once एक बार यूज करने से भी आप इसके एडिक्ट हो सकते हैं. इतना पावरफुल इफेक्ट इसका ब्रेन के ऊपर आता है. इसलिए कभी कभार का दिमाग से निकाल दो. और स्पेशली द यूथ्स ऑफ मुंबई एंड मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली, कलकत्ता and Chennai and Bangalore and Hyderabad and all those, we have seen something known as raves party or weekend parties. ये बहुत खतरनाक होती है, but it's a trend and it is also pushed by these lobbies or the drug peddlers. ये available कराते हैं weekend parties में. If you are from Mumbai, because this lecture is for Junjunwala College of Mumbai Ghatkopar, तो मुंबई से नजदीक है लोनावला, खंडाला है ना, या कई लोग अलीबाग भी जाते हैं. वहां जाके वो लोग वीकेंड पार्टी करते हैं. पुलिस ने बहुत बार इन लोगों को पकड़ा हुआ है. द ड्रग्स आर ऑफ 3 टाइप्स. एक होते हैं जिसको वी कॉल देम डिप्रेसेंट. दे डिप्रेस योर नर्वस सिस्टम लाइक अल्कोहल, ओपियोइड्स, सेडेटिव, hypnotics, volatile solvent. Unfortunately in Mumbai there are certain pockets where
these volatile solvents are used, जिसको हम कहते हैं whitener if you have heard, or eraser, उसको sniff करते हैं. Even at railway stations, the certain children are sniffing this cannabis. Stimulant है cocaine, ATS, that is amphetamine. Hallucinogens are the typical drugs जो लेने के बाद आपको ऐसे लगता है कि आपको we call it delusions या hallucinations होते हैं. आपको उड़ रहा है ऐसा अनुभव होता है. Don't try this, but these are very dangerous. These are some of the photographs of the hard drugs. You can see in this photo how these drugs are used. Ganja, charas, opium, cocaine, mephedrone, and methamphetamine. This is how it is used. इंडिया में मुंबई में कॉमनेस्ट इज वो सिगरेट निकाल के सिगरेट के अंदर का टोबैको दे रिमूव इट एंड दे पुश द गांजा इनसाइड. एट सम प्लेसेस दिस हार्ड ड्रग्स लाइक हेरोइन एंड एवरीथिंग इज आल्सो. सबसे बड़ी चिंता की बात है ये, दैट इज वी कॉल सिंथेटिक ड्रग्स, और ये स्कूल और कॉलेज के बाहर बेचे जाते हैं. दैट इज अ कंसर्न फॉर अस. सर इनका नाम बहुत अट्रैक्टिव रखा है, माना इनका नाम चॉकलेट फ्लेवर या वेनिला फ्लेवर ऐसे रखते हैं, तो स्टूडेंट्स को लगता है ये कोई खाने की चीज है. I will share one incidence of Vikhroli because Ghatkopar is next to us. I stay in Kannamar Nagar where there is a municipal school, and the school, most of the schools and colleges I have done sessions. So one teacher asked me कि he has a query that he children's after the races they sleep in the class. So he asked me कि बच्चे सोते क्यों है क्लास में. तो मैंने कहा शायद कुछ खाते होंगे, खाना पीना ज्यादा इसलिए नींद आती होगी. तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ तो ऐसी चीज है ये लोग खाते हैं. मैंने कहा क्या चीज है. कहते कुछ लड़कों ने बताया कि ये लोग एक टॉफी खाते हैं. मैंने कहा मुझे ला के बता दो. देन आई गॉट दैट टॉफी एंड आई सॉ दैट it was a ganja, a toffee made up of ganja which was available in a pan vendor shop. और मुंबई में ये पान वेंडर शॉप है, ये कुछ पान वेंडर शॉप ये इसका बिजनेस करते हैं. So immediately I sent an alert to narcotic team. They sent their person. पर देखा कि ये लोग बहुत चालाक होते हैं. जैसे कोई नया आदमी आया तो उसको बोलते हैं हमारे पास ऐसे कोई दवा मिलती नहीं है. But I saw I have that packet of drugs with me. It's a tablet available, like ganja tablet. Now they're starting in school children. I'm going to tell you why they catch the school and college children. So these are the synthetic drugs which are available nowadays, prepared in labs. Certain medical drugs like injections and certain tablets, like आपने blue capsule सुना होगा, तो blue capsule spasmoproxyvan पेन किलर्स है, बहुत लोग इसका एडिक्शन करते हैं. So these drugs are legal and illegal. इसके पीछे law है, whether to use, how much to use. These are the ways of using this drug. One minute. So alcohol is drunken, spasmoproxyvan capsule which is taken, swallow, injection. Snorting माना एक टेक्निक होता है जिसमें नाक से खींचते हैं वो लोग, स्नॉटिंग कहते हैं उसको. Usually cannabis and other hard drugs are used like that. Now why people start addiction? There are multiple theories. Certain students are at risk of addictions, जिनको attention कम मिलता है, self esteem कम होती है, जिनका surrounding बहुत खराब है, ऐसे बच्चे जाते हैं एडिक्शन की तरफ. पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, कुछ लोग टेंशन दूर करने के लिए, कुछ लोग फैशन के रूप में, परिवार में झगड़ा होता है, या इजी अवेलेबिलिटी. So I'm talking about lobby again and again, and this lobby is very active in Mumbai at least. आप अगर मुंबई में रहते हैं, and if you read the news of the narcotic department, we are very lucky that we have a very nice officer in Mumbai. His name is Samir Wankhede. He is narcotic chief of Maharashtra and Goa.
तो समीर वानखेड़े ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज बॉलीवुड से रिलेटेड लोगों के घर के ऊपर छापा डाला है एंड ही हैज कॉट कपल ऑफ देम और उसको काफी मीडिया पब्लिसिटी मिली है। तो ये लॉबी कैसे काम करती है? वी कॉल दिस ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क। कोई भी लड़का या लड़की एडिक्ट नहीं होती है, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है, वी कॉल इट पीयर प्रेशर या दोस्तों का दबाव। अब ये लॉबी बहुत सिस्टमेटिकली काम करती है। मैं चाहूंगा सभी यूथ इसको बहुत ध्यान से सुने। ये लॉबी टारगेट निकालते हैं इनका, जैसे सेल्स किसी भी चीज का सेल्स फोर्स होता है, वैसे इसका भी सेल्स फोर्स है और इनको टारगेट दिया जाता है कौन से कॉलेज को टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ झुंझुनवाला कॉलेज इज अ टारगेट, तो इनके लोग झुंझुनवाला कॉलेज के आजू बाजू में घूमते रहेंगे। दे विल वॉच द बिहेवियर ऑफ द यूथ इन द कॉलेज। और कौन सा लड़का या लड़की पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है और वो लोग शो ऑफ करना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो बहुत इंटेलिजेंटली ये क्या करते हैं, आपके साथ दोस्ती करते हैं। दोस्ती करेंगे कैसे? तो आपको अपना मोबाइल देंगे, होटल में खाने को देंगे या कार में घुमाएंगे, तो आपको लगता है बहुत अच्छा दोस्त मिल गया। मदद भी करेंगे आपको कई बार, तो आपकी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगती है। फिर ये देखते हैं कि अभी दोस्ती हो गई, वंस दे आर गुड फ्रेंड्स, देन दे स्टार्ट देयर नेक्स्ट स्टेप इज दे से कि अभी मेरा बर्थडे है, मेरे बर्थडे के पार्टी पे आपको आना पड़ेगा। तो बोलते जरूर आऊंगा। और फिर बर्थडे पार्टी होती है, ऐसी सिक्योरिटेड जगह पे रखी जाती है, पहले से ही प्लानिंग रहती है और बर्थडे पार्टी पे उस लड़के को फिर बुलाया जाता है और फिर उसको बोला जाता है कि देख मेरा बर्थडे है, टुडे इज माय बर्थडे, यू हैव टू टेक। तो अभी वो लड़का फंस जाता है कि अभी तक मैंने इससे ये लिया, होटल में खाया, इसके साथ घूमा, इसने मुझे मदद, ही कैन नॉट से नो। सो पॉजिटिव प्रेशर इज क्रिएटेड ऑन हिम टू टेक द ड्रग्स। वो सोचता है चल यार दोस्ती के खातिर एक बार लेने से क्या होता है। समटाइम गर्ल्स आर ऑल्सो ट्रैप। अभी गर्ल्स क्या सोचती है कि हम तो ड्रग नहीं लेंगे, हम कोल्ड ड्रिंक लेने, वो दैट कैन ऑल्सो बी वेरी डेंजरस, क्योंकि द ड्रग विच आई टॉक अबाउट वी कॉल इट रेप ड्रग। ये ऐसी दवा होती है जो कोल्ड ड्रिंक में मिलाई जाती है। अनफॉर्चुनेटली द इंसिडेंसेस हैव हैपेंड आफ्टर ड्रिंकिंग दैट कोल्ड ड्रिंक which is mixed with that drug, the girl becomes unconscious and then she's been utilized by these peoples. So next day morning में पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ। Even this youth has been utilized. तो वो सोचता है एक बार लेने से क्या होगा और फिर वो एक बार लेता है, उसको अच्छा लगता है। Some people are hooked in by only once use, और कुछ लोग 2-3 बार इस्तेमाल करते हैं पार्टी में और उनको आदत लग जाती है। तो शुरुआत में तो इनिशियली दे गिव इट फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन जब आदत लग जाती है फिर वो देखते हैं कि अब ये इसके बगैर रह नहीं सकता है, फिर उससे पैसा मांगते हैं। तो वो शुरुआत में तो पैसा देता है, फिर इसके पैसे खत्म होने लगते हैं, फिर वो क्या करता है, चोरी करता है और फिर घर से एक एक चीज गायब होने लगती है। तो घर वालों को भी शुरुआत में पता नहीं चलता है, बट जब चीजें गायब होने लगती है तब उनको डाउट आता है। एंड देन सर्टेन बिहेवियर्स व्हिच पेरेंट्स कैन रिमेम्बर या अंडरस्टैंड कि ये लड़का या लड़की अपने कमरे में रहते हैं या बाथरूम में ज्यादा समय तक रहती है, उसके कपड़े के ऊपर दाग रहते हैं, जला हुआ कुछ चीजें पड़ा रहती है, या बात करना बंद कर देती है, या इट स्टार्ट्स स्टेइंग अलोन। तो ये सब लक्षण है कि ही स्टार्टेड सर्टेन एडिक्शंस। तो आप उसको पकड़ सकते हैं। झूठ बोलना चालू कर देती है, तो चोरी करना, झूठ बोलना, या ऐसे क्लोथ्स के ऊपर सर्टेन स्टेन्स व्हिच यू कैन सी, बाथरूम में ज्यादा देर निकालना, ये सब साइंस है कि ये एडिक्शन की तरफ जा रहा है। और फिर जब इसका पैसा खत्म हो जाता है और चोरी करना भी नहीं कर सकता, फिर इसको बोलते हैं देख तेरे को ड्रग देंगे लेकिन तेरे जैसे और लड़के बनाने पड़ेंगे, और फिर ये अपने जैसे और दूसरे लोगों को आदत लगाता है और ये नेटवर्क चालू रहता है। दिस इज हाउ दे आर एक्सपांडिंग। मुझे सबसे बड़ा धक्का ये तब लगा कि इनका साल का टारगेट रहता है। सपोज मुंबई में 1000 लोग एडिक्ट है, तो ये क्या करते हैं कि अगले साल में हमको 2000 करने, इसका प्लानिंग रहता है और पूरे कॉलेजेस को ट्रैप किया जाता है। फॉर योर नॉलेज, बिकॉज यू आर फ्रॉम मुंबई, आप मुंबई में अगर यूट्यूब पे एक वर्ड डालो, म्याओ म्याओ एडिक्शन इन मुंबई, म्याओ म्याओ इज अ कोड नेम फॉर अ ड्रग विच इज यूज, और 30,000 लोगों ने इसका एडिक्शन किया था। हमको भी बहुत लेट पता चला और बाद में पता चला कि ये ड्रग लिस्ट में नहीं है, नार्कोटिक है। फिर उसको उसके बारे में स्टडी करके उसको डाल दिया गया लिस्ट में, तब पुलिस ने पकड़ना चालू किया। सो
This is how these people are coming up with new and new drugs. तो मैं बताना चाहूंगा यूथ को, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल जिसको आप जानते नहीं है, एंड फॉर्मली से नो टू द ड्रग्स। दोस्ती अपनी जगह पर है और नशा अपनी जगह पर। आपको ना कहना आना चाहिए, दोस्ती तोड़ना नहीं है लेकिन ना कहना चाहिए ऐसी चीजों के लिए। और कभी भी गर्ल्स प्लीज डोंट टेक एनीथिंग एट द पार्टी इंक्लूडिंग द कोल्ड ड्रिंक्स। टोबैको के बारे में तो हमको पता था कि फिल्म इंडस्ट्री इसको पुश कर रही है। आज भी बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं, आप सब न्यूज में देखते हैं। पर दिस इज हाउ टिपिकल इट इज प्रोजेक्टेड थ्रू द बॉलीवुड। और यूथ को लगता है कि मेरा हीरो अगर इस स्टाइल में लेता है तो मुझे भी ऐसा लेना पड़ेगा। तो हमने जब इनको रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसे सीन मत दिखाओ, तो कहते इट इज द रोल विच डिमांड्स। तो ये भी एक इसको हम कहते हैं स्टेटस सिंबल। पीपल आर यूजिंग ड्रग्स एज अ स्टेटस सिंबल। तो पहले सिगरेट को करते थे, अभी वीड को स्टेटस सिंबल बना दिया है। Now why people are falling in the trap? It's because of the brain. Please remember, addiction is a brain disease. बहुत लोग कहते हैं कि विल पावर की कमी, ये बहुत लॉन्ग टर्म बिलीफ है। विल पावर की कमी, विल पावर नहीं है, इसके साथ ब्रेन में भी चेंजेस होते हैं। इवन इफ योर विल पावर इज स्ट्रांग, द ब्रेन इज सो पावरफुल कि आपके अगेंस्ट में ये सब काम करवाता है, चोरी करवाता है, क्राइम करवाता है, मर्डर करवाता है। दिस इज द एरिया ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये जो सेंटर है इसको आप कहते हैं न्यूक्लियस एक्किम्बेंस एंड मेंटल टेगमेंटल एरिया। इसके बीच में ये जो ट्रैक है, दिस ट्रैक वी कॉल इट मेसोलिम्बिक ट्रैक, फ्रॉम मिड ब्रेन टू लिम्बिक सिस्टम। तो जब भी कोई ड्रग्स लिया जाता है, this system is activated and there is a release of one substance, we call it dopamine. अब ये डोपामिन जो है ये आपको खुशी का अनुभव कराता है, अत्यधिक खुशी, एक्सट्रीम प्लेजर बिकॉज ऑफ द डोपामिन। तो होता क्या है, जब ये लेता है व्यक्ति उसको बहुत खुशी होती है, जैसे डोपामिन लेवल कम हो जाता है वो फिर से लो में चला जाता है और फिर से खुशी के लिए सेकंड टाइम लेता है और फिर वो निगेटिव साइकिल में ट्रैप हो जाता है। इनिशियली ये सेंटर आपको बहुत खुशी देगा, धीरे धीरे ये सेंटर काम करना बंद कर देगा। आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल कि शुरुआत में सपोज अल्कोहल चालू किया, अल्कोहल का एक पैक लेने से आपको रात को नींद आती है। आफ्टर सम टाइम दैट वन पैक ऑफ अल्कोहल इज नॉट इनफ, आपको 2 पैक लेने पड़ेंगे तभी आपको किक मिलेगी, क्योंकि वो रिसेप्टर्स डैमेज होना चालू हो गए हैं। फिर आपको 3 पैक, फिर 4 पैक, फिर 4 पैक से भी कुछ नहीं होता, आपको कंटिन्यूअसली लेना पड़ता है, तभी आप वो स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं। और फिर जीने के लिए आपको लेना पड़ेगा, देन इट बिकम्स योर मेडिसिन, इट बिकम्स योर ऑक्सीजन। यूथ को सबसे ज्यादा बचाना है, बिकॉज स्टडीज हैव शोन दैट 67% स्टार्ट इन द टीनेज, 12 से 17। एक्चुअली कॉलेज भी लेट हो गया, आजकल यूथ को पकड़ा जा रहा है। अगर आप न्यूज वगैरह पढ़ते हैं कि पहले सिगरेट था, फिर हुक्का आया, फिर समथिंग नोन एज पेन हुक्का, पेन हुक्का कहता है, या निकोटिन डिलीवरी सिस्टम पेन की तरह आने लगे और वो स्कूल में पाए गए। ये तो अच्छा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बैन किया इंडिया में, क्योंकि अमेरिका में बहुत बुरा हाल है इस समय। We banned this, we could stop it. तो ऐसे नए नए ड्रग्स ये लोग लाते रहते हैं, इनका टारगेट है यूथ। अभी यूथ को क्यों पकड़ते हैं? देयर आर रीजंस कि यूथ को पकड़ा जाता है। नंबर 1, यूथ का ब्रेन हैज नॉट मैच्योर्ड, इट इज स्टिल डेवलपिंग। ये देखा गया है कि ग्रीन इज द इमैच्योर, ब्लू इज द मैच्योर पार्ट, इट टेक्स टाइम टू मैच्योर द ब्रेन। तो ये लोग उसके पहले पकड़ते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी में हमारा डिसीजन यहाँ से होता है। ये फ्रंटल पार्ट, इसको हम कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यहाँ से हम डिसाइड करते हैं। और यूथ ज्यादातर इन हिंदी वी के जोश में रहते हैं और होश भूल जाते हैं। एंड दिस इज द पार्ट वी कॉल इमोशनल ब्रेन और एमिगडाला। ये जो एमिगडाला है ये इमोशन के ऊपर काम करता है। When the friend says, चल यार मेरी दोस्ती के खातिर तुझे लेना पड़ेगा, तो वो कहता है चल यार तू भी क्या याद रखे, तेरे लिए सब कुछ, जवानी फिर नहीं आए। So these emotions they take over the reasoning. वो ये नहीं सोचते कि आज मुझे फ्री में मिल रहा है, आज मैं इसको यूज कर रहा हूँ, कल मुझे आदत लगेगी, मेरा पढ़ाई से ध्यान चला जाएगा। There are studies now कि जो लोग एडिक्शन में फंसे हुए उनका कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी, एवरीथिंग इज अफेक्टेड एंड दे बिकम इरिटेबल, चिड़चिड़े हो जाते हैं।
and their lives are lost. I have seen many cases. हमारे विक्रोली में I have seen school children जिसने स्कूल छोड़ दिया गांजा लेने के बाद में. So ऐसे cases होते हैं, brain changes होते हैं. Why some people become addicted so others do not? The reason is these receptors we call dopamine receptors. ये studies है, इसमें देखा गया है कि a study was done in which some groups were given methylphenidate. तो जिसको भी pleasant लगा after methylphenidate they felt pleasant. So वो लोग were prone to addictions, and the reason was that they were having less dopamine receptor. These are the people who are likely to get addicted. There are other factors which are associated with addiction. जैसे मैंने कहा, certain people have risk of getting. जैसे family में कोई नशा करता है तो genes में आता है, या surrounding ऐसा है, या पढ़ाई में ठीक नहीं रहे, fail हुए हैं. And these people usually have associated psychosis, depression, anxiety, panic attacks. तो जैसे ये लोग drug लेते हैं, इनको अच्छा लगता है, इनको लगता है बहुत अच्छी दवा है. The reason that ganja has been pushed in India, कि कई लोग कहते हैं कि गांजा एक बहुत अच्छी दवा है, आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पर प्लीज अंडरस्टैंड दवा लेने का तरीका होता है. गांजा पूरा दवा ही नहीं, उसके अंदर THC करके होता है, टेट्राहाइड्रो. तो वो जो है हाइड्रोक्सी कैनाबिनॉल और कैनाबिनॉइड्स, ये जो है दे आर द मेडिसिन, एंड देयर इज अ वे ऑफ यूजिंग दिस मेडिसिन. इट इज नॉट लाइक जस्ट यू आर स्मोकिंग अ वीड, the exact dose goes. No, it is going to affect your brain in a definite way. We have studies on this. Even if you log in Google and type it the harmful effects of ganja or cannabis, आपको पूरा articles मिल जाएगा. मैं short में जा रहा हूँ. तो इन लोगों को associated mental disorders रहते हैं, and mental illnesses and these drugs affect each other. Why these people are not able to change? This is the reason. Addicts cannot quit because this is a normal person. The normal person, the drive and memory, you can see the memory, the saliency and control. See the control here in normal people and control here in addicts. Somehow addicts में ये controlling center जिसको हम PFC कहते हैं, it is not functioning properly, and drive memory is very strong. I will share one example. I was in Pune. मेरे पास एक लड़का आया काउंसलिंग के लिए, VIP लड़का. उसके माँ बाप बहुत फेमस है, उसको डी एडिक्शन सेंटर में रखा था. He was kept 3 months. Then he came to follow up with us, Brahma Kumari Center, and he was doing well. Apparently he was all right. He was practicing meditation, but suddenly one day, you know what happened? One act. इसलिए हम कहते हैं कि केवल डी एडिक्शन सेंटर में रखना इलाज नहीं है, उसके बाद उसको संभालना पड़ता है quite some time. So what happened? He was preparing a tea. चाय बनाते समय he was using the lighter. अभी लाइटर काम नहीं कर रहा था, तो उसने क्या किया, मैच बॉक्स लिया. मैच बॉक्स की तीली लेके ऐसा रगड़ लिया. He just lit the match box. तो जैसे उसने वो तीली को इस्तेमाल किया, what has happened? Because he was using the hard drugs. So hard drugs में क्या करते हैं, अगर आपने देखा होगा, if you have seen, they use a aluminum foil, and that foil there is a drug, and नीचे से they put the light it, and then they sniff it through the nose. The gas which comes, they sniff it, and that is how the addiction. So ये lighting का just one act, it activated the memory, emotional memory associated with, and it flooded with all his memory, and he started the drug again. So one act can take you back. That's why it is very difficult to quit once you are in addiction stage. So the treatment of any addiction is medical, social, behavioral, and pharmac. It is not just medicine. केवल दवाइयों से इसका इलाज नहीं होता. बिहेवियरल थेरेपी एंड सोशल थेरेपी, फैमिली काउंसलिंग, ऑल इज इम्पोर्टेंट. मेरे पास ऐसे बहुत केसेस हैं कि पेरेंट्स इतने परेशान है, कहते हैं इसको कितने बार रखो, 3 महीना अच्छा रहता है, when he comes back home again he starts. Now it is not his fault. Please understand, the businessmen who are pushing the drugs, they don't give their customers. वो अपने कस्टमर को छोड़ते नहीं है, उनको पता है कि उनका कस्टमर डी एडिक्शन सेंटर में है. फॉर योर इंफॉर्मेशन, यूथ को मैं बताना चाहूंगा, ये जो ड्रग पेडलर्स है, ये डी एडिक्शन सेंटर के बाहर घूमते रहते हैं, क्योंकि उनके कस्टमर अंदर है और इनके पास इनके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, इनका वेयर अबाउट्स होता है. तो जैसे ही बाहर आया, ये इसको फिर से पकड़ने की कोशिश करते, क्योंकि अपने बिजनेस को नहीं छोड़ते. सो वी शुड हैव वेरी पावरफुल बिहेवियरल, सोशल एंड फार्माकोलॉजिकल थेरेपी इंटरवेंशन.
ड्रग एडिक्शन इज अ क्रोनिक प्रॉब्लम जस्ट लाइक डायबिटीज. कई लोग मुझे सवाल पूछते हैं सर कितना दिन तक दवाई लेने का. इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी. डोंट आस्क दिस क्वेश्चन. वी डोंट आस्क क्वेश्चन इन डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा कितना दिन. हमको जिंदगी भर खानी पड़ती है बिकॉज इट्स अ क्रोनिक डिसीज. जस्ट लाइक डायबिटीज वाले को अगर डायबिटीज की दवाई नहीं ली, इफ यू डोंट टेक डायबिटिक मेडिसिन, डायबिटिक शुगर इज गोइंग टू इंक्रीज. ब्लड प्रेशर बढ़ेगा अगर दवाई नहीं लेंगे. सिमिलरली a drug addict who is not under the treatment, observation, counseling and the treatment which is given, again his addiction is going to start because it's a chronic relapsing disorder. Relapse means it keeps on coming again and again. So don't ask this question. But ये देखा गया कि 5 साल तक, for 5 years, if he does the regular follow up and the treatment, then the chances of survival increases. So addiction is similar to other chronic disease. Full recovery is a problem. Drug times बहुत होते हैं. So what I'm going to tell in this session totally is, please youth, especially youth, अगर आपने कोई भी addiction चालू नहीं किया है, please stay away from it. अगर चालू किया है, and you may be in any stage, early, middle or late stage, help is available. There are beautiful medicines available. There are beautiful counseling therapies and beautiful medications. I will share my experience. I have traveled in all the states of India. आपने उड़ता पंजाब तो सुना होगा. I don't know how many of you have observed or seen the movie उड़ता पंजाब. Punjab is worst affected. The highest number of cases are in Punjab, and the highest production of illegal opium happens in Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh is bordering China and Myanmar. See, India का जो location है, अगर आप India का location देखो, so India is wedged between two highest producing opium in the world. So India के right side में top and west में है अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान. यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज्यादा इलीगल ओपियम प्रोड्यूस होता है. ठीक है, इसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं. और ये क्रिसेंट जो है इधर राइट में, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर ईस्ट में, वहां पे म्यांमार है, लाओस है. तो यहाँ पर भी इलीगल ओपियम हाईएस्ट प्रोड्यूस होता है. आई विजिटेड अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर. In border Arunachal Pradesh, only 4 districts I saw huge production of illegal opium. और unfortunate part is, जब मेरे को पता चला कि वहाँ के educated people are involved in farming of opium. As per one study, 100 ton of illegal opium is produced. Now imagine, ये जो इतना हो रहा है production, इसका cost information, the highest earning business में top 3 business में drug आता है. 1 kg heroin की international market में कीमत है 6.5 करोड़ रुपया. Now imagine that उड़ता पंजाब which I was talking about, in that movie it is shown that they throw the packet. पाकिस्तान से इंडिया में पैकेट फेंकते हैं. And there are various novel ways which police are aware of. I once took a session for border security force, we call BSF, जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करते हैं. तो उन्होंने मुझे बताया कि सर यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं ये लोग. तो टायर में एक बार उन्होंने कहा, टायर का ट्यूब होता है, द ट्यूब ऑफ द टायर, उसको कट करके उसमें पैकेट घुसा के, नदी है, देयर इज अ रिवर जिसके अंदर वो फ्लोट कर देते, यहाँ से उठा देते. आपको पता भी नहीं चलेगा इसका ट्रैफिकिंग कैसे होता है. मुंबई में अनफॉर्चुनेटली चिल्ड्रंस आर यूज. जो गरीब बच्चे हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है क्योंकि इसमें पैसा है और बच्चों के ऊपर कोई शक नहीं लेगा. तो द चिल्ड्रंस फ्रॉम द स्लम एरिया और द पुअर चिल्ड्रंस, इनको इस्तेमाल किया जाता है फॉर ट्रैफिकिंग. तो इस तरह से ये होता है. सो व्हाट आई सॉ, 25 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज में जो लोग हमारे पास आए, हमने उनको राजयोगा मेडिटेशन सिखाया. राजयोगा मेडिटेशन इज अ लाइफस्टाइल. इट्स नॉट अ टाइप ऑफ मेडिटेशन, इट्स अ लाइफस्टाइल which is taught by Brahma Kumaris, the headquarter of which is in Mount Abu. तो हमने ये data analyze किया and what we saw that 97% of people could quit the addiction. उसमें से 64% ने 1 महीने के अंदर छोड़ा है addiction and only 3% relapse माना फिर से जिन्होंने चालू किया. तो 96% is a huge result.
I present this study in front of doctors, तो बहुत doctors का विश्वास ही नहीं होता है. I have just put 2 slides for your information here. Otherwise, it's a big study. So what I'm saying is that with this Raj Yoga meditation, बहुत लोगों ने नशा छोड़ा. I'll just share how this mechanism works. जैसे there was a Haryana chap, you know, पंजाब पाकिस्तान के बॉर्डर में, तो पंजाब के बॉर्डर पे 4 डिस्ट्रिक्ट है जो पाकिस्तान से लगे हुए हैं. उसमें अमृतसर, देन तरन तारण है, गुरदासपुर है जो विनोद खन्ना का कॉन्स्टिट्यूएंसी था, और एक लास्ट डिस्ट्रिक्ट. तो ऐसे 4 डिस्ट्रिक्ट और उनके साथ लगा हुआ हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तराखंड है. तो ये या यूपी है. ऑल दिस स्टेट्स आर हाईली अफेक्टेड क्योंकि वहां से वो आता है और फिर मेट्रो सिटी में जाता है, बॉम्बे, दिल्ली और सब जगह पे पहुंचता है. इनका बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है इंडिया के अंदर. सो व्हाट आई हैव सीन दैट कि if these people come to us, we teach them meditation, तो उनके ब्रेन में चेंजेस होता है. तो हरियाणा का एक बंदा अफीम, चरस, गांजा, कोकेन सब लेता था, सिगरेट, हुक्का लेता था, and he could quit everything in 7 days. So we were shocked, ये कैसे हुआ? तो मैंने उसको पूछा कि आपको ऐसा क्या मिला? तो उसने कहा, डॉक्टर साहब मुझे इधर आके पता चला ब्रह्मा कुमारी में कि जो चीजें मैं बाहर लेता हूँ वो सब मेरे अंदर है. मेरे अंदर ये पूरी फैक्ट्री है, उससे ज्यादा खुशी तो मेडिटेशन में मिलती है. सो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग व्हाट ही शेयर्ड, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे ब्रेन के जो प्लेजर सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाते हैं. आपको खुशी मिलती है, ब्लिस का अनुभव होता है और आपकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है. एंड इवन योर दिस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, देर आर डेटा कि ग्रे मैटर बढ़ता है ब्रेन का मेडिटेशन के स्टडी से. तो विल पावर भी बढ़ती है, ब्लिस का अनुभव होता है थ्रू प्लेजर सेंटर, एंड यू कुड क्विट. इफ यू गो इन एनी सेंटर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, यू विल गेट एटलीस्ट 4-5 केसेस जो पहले नशा करते थे और फिर छोड़ दिया, वेदर इज अल्कोहल, टोबैको और ड्रग्स. तो दिस इज व्हाट मेडिटेशन हेल्प्स अस. इट शिफ्ट्स इन योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इट ब्रिंग्स अल्टरनेट हाई, चेक सेल्फ बिहेवियर होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है, एंड वी एक्सेप्ट द एडिक्ट्स एज थ्रू नॉन जजमेंटल वे. एंड देयर इज अ रोल मॉडलिंग क्योंकि हमारे लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, 140 कंट्रीज. आई वाज लकी टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें 180 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वांट टू रिमूव एडिक्शन. तो ये दिल्ली में कॉन्फ्रेंस था, तो आई वाज एबल टू पार्टिसिपेट एंड आई कुड सी पूरा वर्ल्ड अपने कंट्री से ये निकालना चाहता है. इट वाज अ टोबैको कॉन्फ्रेंस. तो मैंने देखा कि दे आर आल्सो वर्किंग ऑन दिस ड्रग. तो यस, मेडिटेशन इज एक्सेप्टेड बाय ऑल. तो शॉर्ट में मैं यही कहूँगा कि इफ you are not used to take addiction, please stay away. And there is a lobby which is working, which wants to push or make ganja legal in this country, and we have to oppose this. कई लोग कहते हैं कि तो बच्चा बहुत अच्छा है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, इससे बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस होती है. but please listen to me very carefully. India is already burdened with tobacco and alcohol. ठीक है, ऑलरेडी हम बर्डन है. आप तीसरा उसमें नहीं डालो. इन स्पाइट ऑफ द लॉज, in spite of the strict law for tobacco, let me share you that 13.5 lakhs people every year are dying because of tobacco. Every day 24 hours में 3,500 लोग मरते हैं. मुझे बहुत आश्चर्य लगता है गवर्नमेंट का. कोरोना के लिए इतना आप इकोनॉमी बंद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, करना चाहिए, लॉकडाउन कर रहे हैं, बट टोबैको के लिए कुछ नहीं. टोबैको ने कोरोना से ज्यादा लोगों को मारा है और मार रहा है. कई लोग समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है. मैं उनको कहता पाकिस्तान ने आज तक इतने लोग नहीं मारे जितने टोबैको ने मारा है. टोबैको किल्स 3,500 पीपल एवरी डे इन इंडिया, और उसको भी एपिडेमिक डिक्लेयर कर देना चाहिए, बट वो नहीं हो रहा है अनफॉर्चुनेटली बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स. ऐसे ही अल्कोहल, वेरी अनफॉर्चुनेट, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि हाईवे से 500 मीटर्स, क्योंकि मैं पूरा भारत में बाय रोड, बाय रेलवे एंड बाय एयर हैज ट्रैवल्ड, तो मैंने देखा रोड एक्सीडेंट्स. आपने भी नितिन गडकरी को अगर सुना हो, रोड एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं और उसका कारण होता है शराब पी के गाड़ी चलाना है, क्योंकि हाईवे पर ही शॉप होते हैं. वो ड्राइवर्स क्या करते हैं,
they eat the food and then they drink and then drive and they kill. वो खुद भी मरते हैं, दूसरों को भी मारते हैं. तो shops को अंदर लेने को बोला 500 meters. And then this lobby again became very active और इन्होंने इसको भी change कर दिया. So please understand, इन लोग का एक ही मकसद है पैसे कमाना और कुछ नहीं. They are not bothered about your health or country. And unfortunate part about the drug is that the money which comes from this drug has been used for anti-national activity. क्योंकि इसमें पैसा बहुत है तो ये पैसे से टेररिस्ट को फंड किया जाता है. So terrorism and drugs are closely linked to each other. So if you are using even for recreation, you are engaged in anti-national activity, क्योंकि ये पैसा anti-national activity को इस्तेमाल किया जाता है. तो भारत को कमजोर करने की कोशिश हो रही है. What I saw after traveling throughout the India, भारत को कमजोर क्यों करना चाहते? There is a reason beyond it. The youth इंडिया में जो है, इसमें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूथ इंडिया के अंदर, इवन मोर देन चाइना. चाइना का पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है लेकिन यूथ हमारे पास ज्यादा है. और यूथ का प्रोडक्टिव एज होता है ना. किसी भी कंट्री का जीडीपी यूथ डिसाइड करता है, प्रोडक्टिव लाइफ डिसाइड करता है. इसी को ये लोग टारगेट कर रहे हैं. तो यूथ को सीधा पकड़ना मुश्किल है, वो पकड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट द अदर वे इज थ्रू ड्रग्स. तो ड्रग्स में इसकी पावर खत्म हो जाती है. आई हैव सीन इन उड़ता पंजाब. I once had one session in अमृतसर. तो अमृतसर ने मैंने देखा कि one mother came with 2 kids, माना 2 बच्चों को लेके आई थी और दोनों बच्चे हार्डकोर एडिक्ट थे. उसके 2 ही बच्चे थे और दोनों के हाथ में खड्डे खड्डे थे, इंजेक्शन लेके हाथ में खड्डे, पैर में खड्डे. दैट वाज वेरी हॉरिबल सीन आई हैव सीन. और अगर आप नेटवर्क को देखते हैं, गूगल अगर देखते हैं, तो आप फिर से अपने गूगल में जाके मकबूलपुरा करके टाइप करें. मकबूलपुरा इन पंजाब. ये विलेज को कहते हैं विडोज का विलेज, माना विधवाओं का गांव है, क्योंकि वहां के सभी मेल, बाप और बेटा ड्रग्स लेके खत्म हो गए. आई हैव विजिटेड दिस विलेज एंड द स्टोरी इज पैथेटिक देयर. तो ये बहुत बुरा हाल करता है. ड्रग्स किसी भी हालत में आपको इधर नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए. फॉर्मली से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ. और अगर ले रहा है तो वी हैव ब्यूटीफुल मेडिसिन अवेलेबल. मुंबई में बहुत अच्छे डी एडिक्शन सेंटर है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बोथ, एंड नियर बाय मुंबई आल्सो. तो आप छोड़ सकते हैं. देयर इज अ हेल्प अवेलेबल अगर आपको एडिक्शन या आपके किसी रिश्तेदार को है. सो आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर एंड आई वुड लाइक टू हैव क्वेश्चंस. अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. Yes, they have posted in the chat box. Thank you, sir. It was very informative and motivating talk. If quite a few students understood the presentation and prevent themselves or their friends from taking drugs, the motive of this talk will be fulfilled, I think. So in future also, we would like to be part of this anti-drug drive with you, sir. बहुत अच्छा होगा. I work with government of Maharashtra and I work with narcotic department. मैं थोड़ी जानकारी, मुझे टाइम का पता नहीं था, मुझे लगा क्वेश्चंस बहुत आएंगे, इसलिए मैंने पहले कट शॉट कर दिया. आपकी जानकारी के लिए बता दो, अगर कोई लड़का पकड़ा जाता है ना, या नाम भी आता है, आप ले नहीं रहे लेकिन आप इन लड़कों के साथ पाए गए, आपका पुलिस स्टेशन में नाम गया, यू हैड इट, एनी टाइम समथिंग हैपन, पुलिस विल कॉल यू. क्योंकि उनको पता है कि इसके दोस्त है, ये नहीं लेता है लेकिन इसके दोस्त है. आप समझ गए. पार्टीज जो रेव्स पार्टी होती है लोनावाला खंडाला में, वहां पे कई सारे ऐसे लड़के जो एडिक्ट नहीं है, जिन्होंने कभी नहीं लिया. उनकी एक ही गलती है कि दोस्तों के साथ एंजॉय करने चले गए, और सबका नाम उस लिस्ट में आता है. और अगर एक बार आपका पुलिस स्टेशन में नाम आ गया, फिर यू आर, माना आपके बहुत सारे एडवांटेज चले जाते हैं. हर बार पुलिस आपके ऊपर ध्यान रखेगी. तो प्लीज सी टू इट दैट कि आप लेना तो नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ में भी नहीं रहना चाहिए जो ये लेते हैं, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट हैपेंस. आप मुंबई से है तो मुंबई का मैं एक इंसिडेंस बताऊंगा. भाईकाला में एक बहुत अच्छा फेमस एरिया है. वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो कुछ नहीं करता था, सिर्फ वो दोस्तों के साथ रहता था. दोस्त थे उसके, पर वो गलत रास्ते पर चले गए थे. ही वाज स्टैंडिंग एट द गेट, और वो दोनों जो अलग थे उन्होंने कुछ तो किया था. अभी जो आए मारने वाले, वो दोनों को मारना था, तो दोनों को शूट किया. ही वाज स्टैंडिंग, और उसने देखा किसने शूट किया, तो उनको डर लगा कि इसने देखा है तो उसको भी शूट किया.
So this youth died only because of company of such people. तो ऐसे लोगों की कंपनी भी आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में आपका नाम जाता है और लोग ऑब्जर्वेशन रखते हैं आपके ऊपर. So stay away from it. The question which is asked कि any estimate कि how many students would be addicted in a area. See, जब तक ये लोग स्टूडेंट आगे नहीं आते हैं, there are certain reasons कि पेरेंट्स बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल रखो बातें, है ना, और पुलिस ये सब चीजें कॉन्फिडेंशियल रखती है, और इंडिया में लोग हैं वो डेटा देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, है ना. तो डेटा जो भी अवेलेबल है, जो डी एडिक्शन सेंटर में गवर्नमेंट के गए हैं वो रखते हैं, बाकी प्राइवेट वाले डेटा कई बार शेयर नहीं करते बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी रीजन. ठीक है, मैं फिर से कहूंगा कि शुरुआत यूज से होती है, यूज, मिसयूज, अब्यूज, डिपेंडेंस एंड एडिक्शन. तो आपको यूज भी नहीं करना चाहिए. देयर आर हेल्दी वेज ऑफ गेटिंग द डोपामिन. आप फिजिकली फिट रहो, पढ़ाई करो, क्रिएटिव एक्टिविटीज है वो सब करो, लेकिन इससे दूर रहो, क्योंकि इट्स अ वन वे ट्रैफिक. एक बार आप चले गए तो वापस आना बहुत मुश्किल होता है. Which part of the body is affected by drug? Every part of the body. Please don't misunderestimate this. जैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, आपने जो ड्रग्स पेडलर देखे होंगे वो रेलवे में नीचे बैठ के लेते हैं, वो इंजेक्शंस लेते हैं. तो इंजेक्शन अगर सेम शेयर करते हैं तो आपको HIV, हेपेटाइटिस जैसे बीमारियां होती है. ठीक है ना. देन लंग्स की बीमारियां होती है, लंग्स न्यूमोनिया होता है, एंड हार्ट डिसीज क्योंकि इन्फेक्शन जाता है, एंडोकार्डाइटिस नाम की बीमारियां होती है. बहुत कुछ होता है इसमें. ब्रेन जाता है, सबसे ज्यादा आपका ब्रेन काम से. मेरे पास स्कूल के बच्चे हैं जो गांजा लेने की वजह से स्कूल छोड़ दिया है जिन्होंने, है ना. कॉलेज के बच्चे हैं जिन्होंने कॉलेज छोड़ दिया. हमारे इधर सुसाइड भी होती है. लास्ट स्टेज में वो बच्चा सुसाइड करता है, ऊपर टेरेस पे जाके जंप करता है, क्योंकि उसको ड्रग नहीं मिलता है एंड द विड्रॉल्स आर सो स्ट्रांग कि वो सहन नहीं कर पाता है, कि उसे सहन नहीं हुआ. मेरे पास ऐसे केस है. अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट कोट देम. कई इंस्टीट्यूट के नाम भी है मुंबई में. कौन से कॉलेज टारगेट है ये हमको पता है, लेकिन है ना, आई एम बाउंडेड बाय द सर्टन लॉज. में उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कॉलेज के ऊपर इन लोगों का ध्यान है. ठीक है, क्योंकि स्कूल में थोड़ा तो बंधन होता है माँ बाप का. कॉलेज में आने के बाद बच्चे जैसे उड़ता पंछी बन जाते हैं. उनको लगता है अभी हम बड़े हो गए, हमको कुछ बोलना नहीं चाहिए, और पॉकेट मनी भी मिलता है और वो मिसयूज करते हैं. हाँ, अल्कोहल शॉप्स गॉट ओपन ड्यूरिंग लॉकडाउन. ये तो गवर्नमेंट का सवाल है. मैं यही कहूंगा कि ये, है ना, आपको प्रेशर क्रिएट करना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली जो एनजीओ इसके अगेंस्ट आवाज उठाती है बहुत कम है, और इनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है. ये डिमांड और सप्लाई प्रिंसिपल पे काम करता है. एनी एडिक्शन डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम करता है. तो डिमांड को क्रिएट किया जाता है, डिमांड को क्रिएट किया जाता है, और डिमांड है तब तक सप्लाई होगा. तो परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ एनी एडिक्शन इज डिमांड को बंद करो, या प्रोडक्शन को बंद करो, या सप्लाई को बंद करो, है ना. तो हम जो काम कर रहे हैं अवेयरनेस के ऊपर है, क्योंकि ये प्रोडक्शन करना या दुकान खोलना नहीं खोलना. मैं आपको मजे की बात सुनाता हूँ. आपने शॉप्स के बारे में बोला है. मुंबई में अगर आप जाओ तो मुंबई में एक बिल्डिंग है ओल्ड कस्टम हाउस में. वहां पर आप अगर जाएंगे तो आपको दारूबंदी खाते, इफ यू अंडरस्टैंड मराठी, दारूबंदी खाता, एंड उसके बाजू में ही है गवर्नमेंट का वो डिपार्टमेंट जो दारू का लाइसेंस देता है. माना राम और रावण बाजू बाजू में रहते हैं. एक तरफ लाइसेंस मिलता है दारू का दुकान खोलने का, और उसके बाजू में ही नशाबंदी मंडल का ऑफिस है. तो दिस इज हाउ गवर्नमेंट फंक्शंस, है ना. उनको रेवेन्यू चाहिए, पर वो सोचते नहीं है कि रेवेन्यू कितना मिल रहा है और लॉस कितना हो रहा है ना. और ये पूरा लॉबी है, बहुत स्ट्रांग है. तो हमको ये प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर. जैसे अभी आप लोगों को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, चंद्रपुर इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र. वहां पर पूरा दारू बंदी किया था, पूरा साइंटिफिक स्टडी करके दारू बंदी किया था. लेकिन अभी फिर से, है ना, थ्रू सर्टन पीपल ये दिखाया गया है कि इलीगल शॉप्स होते हैं, इलीगल दारू बेची जाती है, इसलिए दारू करना चाहिए क्योंकि लोगों को जरूरत है, और वहां से फिर से दारू चालू कर दिया है. सो दिस इज हाउ द पॉलिसीज आर चेंजिंग. हमको अवेयर रहना चाहिए. कम से कम खुद को बचाना है, अपने परिवार को और अपने दोस्तों को बचाना है. एट दिस स्टेज हम इतना ही कर सकते हैं. एनी अदर क्वेश्चन? Students, if you have any question, you can post it in the chat box.
There are इसी some few comments. Very informative session. मैं एक इतना कहना चाहूंगा यूथ को, बिकॉज आई वर्क विथ यूथ, है ना, आपको अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना सीख लेना चाहिए. मेडिटेशन इज वन वे ऑफ चैनलाइजिंग योर एनर्जी. कई लोगों को ऐसे बिलीफ है कि मेडिटेशन के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है. आई एम सॉरी, इट्स अ रॉन्ग बिलीफ. कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, सब कुछ करते हुए आपको मेडिटेशन करना है. क्योंकि मैंने देखा है आजकल का यूथ में वॉट एवर रीजंस जो उनके ऊपर मीडिया का प्रेशर बहुत है, स्टेटस सिंबल का, है ना, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ये जो पंच लाइन होते हैं, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ये आपके दिमाग में डाल दिया जाता है कॉन्शियसली. एक एडवर्टाइज आता है अजय देवगन का और उसमें बोलता है दाने दाने में है केसर का दम. अभी ये दाने दाने में है केसर का दम, इसके वजह से राजस्थान में एक व्यक्ति को, उसको लगा सिंघम का इमेज है तो उसने वो खाना चालू किया. अभी विमल एंड ऑल दिस, ये लोग बहुत इंटेलिजेंट है, इनको पता है कि गुटखे की डायरेक्ट एडवर्टाइज नहीं कर सकते. वो एडवर्टाइज गुटखे की नहीं होती है, वो दूसरी किसी और की एडवर्टाइज, पर नाम विमल होता है. तो आपके दिमाग में डालना होता है कि विमल आपको लेना, इसमें केसर का दम है. अभी एक व्यक्ति ने उसके अगेंस्ट में लिखा कि आपको देखकर हमने चालू किया और उसको कैंसर हो गया. तो ये लोग कहते कि हमने तो गुटखे का एडवर्टाइज नहीं किया. इसको हम कहते सरोगेट एडवर्टाइजिंग. एवरी फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन अगर आप देखो कि ये गुटखा कंपनी स्पॉन्सर करती है, आपको बहुत कुछ दिमाग में डाला जाता है कि थोड़ी शराब शरीर के लिए अच्छी है, इससे किडनी स्टोन ठीक होता है, हार्ट के लिए अच्छे, पता नहीं कितने बेनिफिट है. मुझे तो ऐसे लगता है अगर इतने बेनिफिट है तो हर क्लिनिक में डॉक्टर के पास इसको रखना चाहिए और जो भी आता है उसको 2-2 चम्मच पिलाना चाहिए टॉनिक की तरह. ऐसे इसको प्रमोट किया जाता है और बच्चे इसमें फंस जाते हैं. सो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट अबाउट द एडवर्टाइजिंग डन बाय दिस इंडस्ट्री, और आपके दिमाग में डाल दिया जाता है. सो मैनेज योर स्ट्रेस, डेवलप योर कोपिंग स्किल्स इन अ हेल्दी वे. एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, म्यूजिक सुनो, अच्छी अच्छी चीजें खाओ, बट स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस अनहेल्दी हैबिट जो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान देते हैं. एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी. आपको अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझे फ्री में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आई एम अ प्रोफेशनल काउंसलर. मेरे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं, अभी भी आने वाला है, पर हम कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से उसको ओपन अप नहीं कर सकते. लेकिन ड्रग इज यूजफुल लाइक डॉक्टर्स ड्यूरिंग ऑपरेशन. यस, every substance is used by the doctors. Yes, drug, these are very powerful. जैसे ओपियम आप जो अफीम इस्तेमाल करते हैं, इट्स अ वेरी पावरफुल पेन किलर्स, तो डॉक्टर्स उसको यूज करते हैं. इसलिए मैंने कहा गांजा के अंदर THC जो है वो बहुत अच्छा ड्रग है, पर देयर इज अ वे ऑफ यूजिंग इट. आप उसको जनरली नहीं ले सकते, उसका डोज होता है, उसका लेने का तरीका होता है. दैट्स व्हाई इट इज यूजफुल एंड वी आर यूजिंग इट. वी आर यूजिंग सो मेनी मेडिसिन्स, बट उसको जब मिसयूज करते हैं, जैसे आपने पूछा है, तो नींद की गोलियां है. अभी कई लोगों को नींद नहीं आती है, दे डोंट गेट स्लीप, तो उनका बीपी बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ती है, तो हम उनको हिप्नोटिक्स देते हैं, नींद की गोलियां देते हैं. लेकिन फिर क्या करते हैं ये लोग, 10-10 गोली एक साथ खाते हैं. 10 टैबलेट्स, आई हैव सीन 40 टैबलेट्स वाला बंदा है. ये कफ सिरप मैं आपको बताऊंगा, मुंबई में बहुत सारे कफ सिरप लेते थे. कफ सिरप की 9 बॉटल एक साथ पीते हैं. कोडिन कफ सिरप 9 बॉटल्स एट अ स्टार्ट. तो ये इनकी मदर्स, फैमिली मेंबर्स आते हैं, हमारे बच्चे को बचाओ, ये 9 बॉटल कफ सिरप के पीता है. सो मेडिसिन इज देयर, लेकिन उसको कंट्रोल यूज और अंडर प्रिस्क्रिप्शन ही इसका इस्तेमाल होना चाहिए. You can contact me on my WhatsApp number. The WhatsApp number you can take it from madam. Morphine is one of the opium, है ना, ओपियम पेन किलर. जैसे अफीम की खेती होती है, आपने देखा है कि पता नहीं राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है. ओपियम इज ग्रोन देयर, या अरुणाचल प्रदेश में ऑफिशियली अलाउड, बिकॉज उसमें से जो मॉर्फिन पेन किलर निकलता है वो ओपियम से ही निकलता है, पॉपी सीड्स जिसको कहते हैं. ओके. Okay, thank you, sir. May I now request Priya Shetty madam to propose vote of thanks? Because ma'am. sir is getting late for his work. Yeah, no issue, no issue. Priya? Ranjan Jhunjhunwala College, DLLE unit. I would like to thank Dr. Sachin Parab for enlightening us on the aspect of drug abuse. I would also like to thank Director of Hindi Vidya Prachar Samiti, Usha ma'am, Principal sir, Himanshu sir, Vice Principal Praveen sir, Sneha ma'am,
Kiran sir for their continuous support and encouragement. I would also like to thank DLLE coordinator Vaishali ma'am and DLLE team for providing their support in organizing this event. Finally, would like to thank our wonderful students. Thanks once again. Thank you, Priya. Thank you, Parab sir. We would like to be associated with all the drives you are conducting in the future also. Sure, Thank you, sure. sir. हमको भी चाहिए आपके. And then there is a procedure for college. Your college can be declared as addiction free if you follow certain criteria, है ना. और फिर वो notify किया जाता है. Mhm. तो स्टूडेंट्स का एसोसिएशन होता है, दे रन सर्टन एक्टिविटीज, है ना. Okay. तो कुछ कॉलेजेस है मुंबई में फ्री किए गए हैं. ये प्रोसीजर को आपके कॉलेज में भी फॉलो किया जाता है, तो लोगों में भी अवेयरनेस रहता है कि ये कॉलेज एडिक्शन फ्री है या ड्रग फ्री है. देयर इज अ क्राइटेरिया ऑफ इट. तो वो भी हम फ्यूचर में कर सकते हैं. Okay, sir. I will contact you. ठीक in है. this थैंक यू. regard. ओके, Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच. Thank you. आई एम लीविंग.